کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال اس زمین پر آنے کے بعد کیا کچھ چیزیں کرے گا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول کہاں اور کب ہوگا اور یاجوج اور ماجوج کون ہیں اور ان سب کا خاتمہ کس طرح ہوگا اور مسیحی دجال سے لے کر قیامت تک کے بیچ کیا کچھ ہوگا؟ اور انہی چیزوں کے اوپر رسول اللہ کی دو بڑی اور لمبی حدیثیں ہیں۔ صحیح مسلم کی 2937 حدیث اور سنن ابن ماجہ کی 4077 حدیث۔ ان دونوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کبھی کبھار دجال کے بارے میں کچھ اس طرح بتایا کرتے تھے جیسے کہ وہ کوئی عظیم فتنہ ہو اور بہت بڑی مصیبت ہو، اور کبھی کبھار ایسے بتاتے تھے جیسے کہ وہ کچھ ہو ہی نہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ہمیں دجال کے بارے میں غور سے بتانے لگ جاتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے مانو دجال کھجور کے جھاڑیوں کے پیچھے کہیں چھپا ہو۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم شام کے وقت رسول اللہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں دجال کے بارے میں کبھی اس طرح بتاتے ہیں جیسے کہ وہ ایک عظیم فتنہ ہو، اور کبھی اس طرح بتاتے ہیں جیسے وہ کچھ ہو ہی نہیں، اور کبھی کبھار تو ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ دجال کھجور کے جھاڑیوں کے پیچھے کہیں چھپا ہے۔ اور تب رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ اور بھی بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہوں۔ اگر دجال ابھی آ جائے جبکہ میں زندہ ہوں تو میں تمہاری جگہ اس کا سامنا کرنے کے لیے کافی ہوں، لیکن اگر میں نہ رہوں اور پھر وہ تمہارے سامنے آئے تو پھر ہر ایک مسلم کو خود ہی اپنی حفاظت کرنی ہوگی، اور میری جگہ اللہ تم سب کا مددگار رہے گا۔ اور جان لو کہ دجال ایک ینگ اور نوجوان شخص ہوگا جس کے بال گھنگرالے ہوں گے اور وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا۔ اور اسی کے اوپر ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی 7407 حدیث، جس کے اندر رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تم سے چھپا نہیں ہے، اللہ ایک آنکھ سے کانا نہیں ہے، جبکہ دجال اپنی دائیں آنکھ سے کانا ہے، اور اس کی آنکھ ایسی ہے جیسے ایک پھولا ہوا انگور کا دانہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی 2934 حدیث، جس کے اندر رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ دجال کے پاس کیا ہوگا۔ اس کے پاس دو نہریں ہوں گی، ایک نہر آنکھوں کو صاف پانی کی طرح دکھے گی اور دوسری نہر آنکھوں کو دہکتی آگ کی طرح دکھے گی۔ تو تم میں سے کوئی بھی اگر اس منظر کو جا پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ گردن جھکا کر جسے وہ آگ کا نہر سمجھتا ہے اس میں سے پانی پی لے، کیونکہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ اور کچھ نہیں بلکہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اور دجال ایک آنکھ سے کانا ہے، اور اس کی آنکھ کے اوپر چمڑی کی ایک موٹی پرت ہے، اور اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ لکھا ہوا ہے کافرہ، یعنی کافر، اور ہر ایک مومن اس چیز کو پڑھ پائے گا، چاہے پڑھا لکھا ہو یا پھر نہ ہو۔ اور اسی کے اوپر ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی 2933 حدیث، جس کے اندر رسول اللہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں گزرا جس نے ایک آنکھ والے اس دجال کے بارے میں اپنی امت کو نہ بتایا ہو، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کے ماتھے پر لکھا ہے کافرہ۔ پھر ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی 2946 حدیث، جس کے اندر رسول اللہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر آخرت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اب پھر سے شروع کی دو حدیثیں جہاں پہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے اپنے امت کو دجال کے بارے میں خبردار نہ کیا ہو، جبکہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، تو بے شک وہ تم ہی میں آئے گا۔ اور دجال خلا نام کے ایک جگہ سے نکلے گا جو عراق اور شام کے بیچ میں ہے، اور میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسے بتاؤں گا جیسا کسی نبی نے اپنے امت کو نہیں بتایا۔ جب شروع میں دجال نکلے گا تو وہ کہے گا کہ میں ایک نبی ہوں جبکہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے، اور دوسری دفعہ وہ کہے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں جبکہ تم اپنے رب کو بنا مرے نہیں دیکھ سکتے، اور وہ ایک آنکھ سے اندھا ہے جبکہ تمہارا رب اندھا نہیں ہے، اور اس کے آنکھوں کے بیچ لکھا ہوا ہے کافر، جسے ہر مومن پڑھ لے گا چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ اور تم میں سے جو بھی اس وقت تک زندہ بچے اور دجال کے سامنے آ جائے تو اسے سورہ کہف کی شروعاتی آیتیں اس کے اوپر پڑھنی ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں لکھا ہے کہ دجال کے پاس جنت اور جہنم ہوگا، لیکن اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی، اور جو کوئی بھی دجال کے جہنم اور جنت کے بیچ آ جائے تو اسے اس کے جہنم کے آگے سورہ کہف کی شروعاتی آیتیں پڑھنی ہے، اور اس کے بعد وہ آگ ٹھنڈے پانی کی سی ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم کے لیے ان کی آگ ہو گئی تھی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ نے کہا کہ وہ شام اور عراق کے بیچ میں سے نکلے گا اور چاروں طرف بربادیاں پھیلاتا ہوا جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ نے کہا کہ اے میرے لوگو، سچائی کو تھامے رکھو۔ اور تب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دجال زمین پر کتنی دیر رہے گا؟ اور رسول اللہ نے کہا کہ وہ 40 دن رہے گا، ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا،
और दूसरा दिन एक महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन एक हफ्ते के और बाकी के दिन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। और उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो एक दिन जो एक साल के बराबर होगा, क्या 5 वक्त की नमाज उस एक साल के लिए काफी होगी? और रसूल अल्लाह ने कहा कि नहीं, बल्कि तुम्हें अंदाजे लगाकर नमाज पढ़नी होगी। और फिर हमने पूछा कि या रसूल अल्लाह, दज्जाल की जमीन पर चलने की तेजी कैसी होगी? और रसूल अल्लाह ने कहा ऐसे जैसे बादल चलते हैं तूफानों में। वो लोगों के पास आएगा और उन्हें अपनी तरफ बुलाएगा, और अगर वो लोग उसकी कही हुई बातों को मान लेंगे तो वो आसमान को हुक्म देगा और आसमान बारिश बरसाएगा और उनकी जमीनों में अनाज पैदा होगा। और शाम को उनकी भेड़ बकरियां भर पेट चरकर आएंगी और उनके सीने दूध से भरे हुए होंगे। फिर वो दूसरे कबीलों के पास आएगा और उन्हें अपनी तरफ बुलाएगा, और अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो उनसे सब कुछ छीन लेगा और वहाँ सूखा पड़ जाएगा, और दौलत के नाम पर कोई भी चीज वो वहाँ बाकी नहीं छोड़ेगा। फिर वो एक बंजर जमीन के ऊपर चलता हुआ जाएगा और कहेगा अपने खजाने निकालो, और खजाने बाहर आकर उसके सामने ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे जैसे मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं। वो एक अरब के पास आएगा और कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मरे हुए माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मान लोगे कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ? और वो कहेगा कि हाँ, फिर तो मैं मान लूंगा। और फिर उसके कहने पर 2 शयातीन उसके माँ बाप के चेहरे में उसके सामने आएंगे और कहेंगे बेटा, इस पर यकीन कर लो, यही तुम्हारा रब है। और फिर एक हदीस है सही मुस्लिम की 2943 हदीस, जिसके अंदर रसूलुल्लाह कहते हैं कि ऐसी कोई जमीन या शहर नहीं होगा जिसके अंदर दज्जाल दाखिल नहीं होगा सिवाय मक्का और मदीना के, और इन दोनों के हर एक दाखिले पर फरिश्ते सफ बनाकर खड़े होंगे जो दज्जाल को मक्का या फिर मदीना में दाखिल होने नहीं देंगे। और फिर दज्जाल मदीना के बाहर ही एक बंजर जमीन के पास एक पहाड़ के ऊपर पड़ाव डालेगा और मदीने में 3 दफा जलजले लाएगा, और उन जलजलों की वजह से मदीना में से हर एक मुनाफिक और काफिर बाहर निकल आएगा और मदीना उस दिन बिल्कुल पाक और साफ हो जाएगा। फिर एक हदीस है सही मुस्लिम की 2938 हदीस, जिसके अंदर रसूलुल्लाह कहते हैं कि दज्जाल जमीन पर होगा और मोमिनों में से एक शख्स दज्जाल के करीब जाएगा, और तभी दज्जाल के सिपाही उससे पूछेंगे कि तुम किस तरफ जा रहे हो? और वो शख्स कहेगा कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ जो अभी सामने से आ रहा है, यानी कि दज्जाल। और फिर वो सिपाही उससे पूछेंगे कि क्या तुम हमारे रब पर यकीन नहीं रखते? और वो मोमिन शख्स उनसे कहेगा कि हमारे रब के बारे में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, और वो सिपाही कहेंगे कि कत्ल कर दो इसे। और फिर वो मोमिन शख्स उनसे कहेगा कि क्या तुम्हारे आका दज्जाल ने तुम्हें बिना उसकी इजाजत के किसी को मारने से मना नहीं किया? और तब वो लोग उसे दज्जाल के पास लेकर आएंगे, और जैसे ही वो दज्जाल को देखेगा वो कहेगा ऐ लोगो, यही है वो दज्जाल जिसके बारे में हमें रसूलुल्लाह ने बताया था। और ये सुनते ही दज्जाल कहेगा कि फोड़ दो इसका सर, और वो लोग उसके सर पर, उसके पेट पर और उसकी पीठ पर भी वार करेंगे। और तब दज्जाल उसको पकड़कर कहेगा कि क्या तू मुझ पर यकीन नहीं रखता है? और वो शख्स कहेगा कि तू तो झूठा मसीह है। और फिर दज्जाल उस शख्स को 2 टुकड़ों में काटने का हुक्म देगा, और फिर उसे एक आरी से 2 टुकड़ों में काट दिया जाएगा, और दज्जाल उसके 2 टुकड़ों के बीच चल कर दिखाएगा और फिर कहेगा खड़ा हो जा, और वो शख्स फिर से जुड़कर सीधा खड़ा हो जाएगा। और फिर दज्जाल उससे पूछेगा कि क्या तू अब यकीन करता है कि मैं ही तेरा रब हूँ? और वो मोमिन शख्स कहेगा कि इससे तो मुझे और यकीन आया कि तू ही दज्जाल है। और फिर दज्जाल अपने लोगों से कहेगा कि ऐ लोगों, ये फिर दोबारा इस तरीके की हरकत तुम सबके सामने नहीं कर पाएगा। और दज्जाल आगे बढ़ेगा और उसकी गर्दन पकड़ेगा ताकि वो उसे मार सके, पर उस शख्स की गले से लेकर कॉलर की हड्डी तक की जगह पीतल की हो जाएगी और वो उसे मार नहीं पाएगा। और जब दज्जाल को उस शख्स को मारने का कोई तरीका दिखाई नहीं देगा तो उसे वो पकड़कर हवा में फेंक देगा, और लोगों को लगेगा कि हमारे रब ने इस शख्स को जहन्नम में फेंक दिया है, जबकि असल में वो शख्स जन्नत में गया होगा। और रसूलुल्लाह ने कहा कि वो शख्स रब्बुल आलमीन के नज़र में सबसे ऊंचे दर्जे का शहीद होगा। और इब्ने माजा की हदीस में उम्मे शरीक पूछती हैं कि या रसूलुल्लाह, अरब और मुसलमान उस दिन कहाँ होंगे? और रसूलुल्लाह कहते हैं कि उन दिनों में मुसलमान और अरब बहुत कम होंगे, और उनमें से बहुत से लोग बैतुल मक़दिस में होंगे, और उनका इमाम एक नेक इंसान होगा। और सही मुस्लिम के हदीस के मुताबिक जब दज्जाल उस शख्स को हवा में फेंक चुका होगा तो ये वही वक्त होगा जब ईसा इब्ने मरियम दमिश्क के मशरिक की ओर, यानी डमास्कस जो जगह है उसके ईस्टर्न साइड में एक सफेद मिनारत के ऊपर 2 फरिश्तों के पर अपने हाथों को रखे हुए नजूल करेंगे, और उन्होंने 2 कपड़े पहने हुए होंगे जो हल्का सा जाफरान से डाई किया हुआ होगा। और जब वो अपना सिर नीचे करेंगे तो पसीने के कतरात नीचे गिरेंगे, और जब वो अपना सिर ऊपर करेंगे तो मोतियों के से कतरात नीचे गिरेंगे। और जो भी काफिर ईसा अलैहिस्सलाम की खुशबू को सूंघेगा वो वहीं मर जाएगा, और उनकी खुशबू वहां तक होगी जहां तक उनकी सांस जाएगी। और जब ईसा अलैहिस्सलाम
नीचे उतर चुके होंगे तो वो देखेंगे कि मोमिनों के इमाम इमाम अल महदी नमाज पढ़ाने जा रहे हैं, तो उनके इमाम थोड़ा सा पीछे आएंगे ताकि ईसा अलैहिस्सलाम आगे जाकर नमाज पढ़ा सकें। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम उनके कंधों पर हाथ रखकर कहेंगे कि जाएं नमाज पढ़ाएं, क्योंकि इकामत आपके लिए दी गई थी। तो मोमिनों के इमाम ही उस दिन नमाज में इमामत करेंगे। और एक दूसरी हदीस में है, सही मुस्लिम की 156वीं हदीस, जिसके अंदर रसूलुल्लाह कहते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम नीचे आएंगे और उन मोमिनों का इमाम उनसे कहेगा कि आएं नमाज पढ़ाएं, और हजरत ईसा कहेंगे नहीं, कि तुम लोग एक आपस के ही इमाम हो और अल्लाह ने इस उम्मत को ये इज्जत बख्शी है। और जब नमाज खत्म हो जाएगी तो हजरत ईसा कहेंगे कि दरवाजा खोलो, और जैसे ही दरवाजा खोला जाएगा दरवाजे के बाहर दज्जाल अपने साथियों के साथ खड़ा होगा, और उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जिन्होंने हरे कलर की चादर ओढ़ रखी होगी। एक और हदीस है, सही मुस्लिम की 2944वीं हदीस, जिसके अंदर रसूलुल्लाह ने कहा कि दज्जाल के साथ इस्फहान से 70,000 यहूदी होंगे और उन लोगों ने पर्शियन शॉल्स पहन रखी होंगी। और जैसे ही दज्जाल हजरत ईसा को देखेगा वो पिघलना शुरू करेगा जैसे पानी में नमक पिघलता है, और वो वहां से भागेगा। और हजरत ईसा कहेंगे कि मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही वार है जिससे तुम बच नहीं पाओगे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को जा पकड़ेंगे और उसे लुद्ध के एक मशरिकी गेट के पास कत्ल कर देंगे, और अल्लाह यहूदियों को हरा देगा और यहूदी चारों तरफ भागना शुरू करेंगे। लेकिन जो कुछ भी अल्लाह ने बनाया वो सब भी बोलना शुरू करेंगे। हर पत्थर, हर पेड़, हर दीवार, हर जानवर बोलना शुरू करेगा, सिवाय एक पेड़ के जिसका नाम होगा गरकद, जो कुछ नहीं बोलेगा। रसूलुल्लाह ने कहा क्योंकि ये यहूदियों का दरख्त है। अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे छुपेगा तो वो पत्थर कहेगा, ए अल्लाह के बंदे इधर आओ, यहाँ पर एक यहूदी छुपा है, इसे कत्ल कर दो। और तब उन लोगों को जिनको अल्लाह ने अब तक बचा रखा था उनके पास ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और उनके आंसू पोंछेंगे और उन्हें बताएंगे उनके मुकाम के बारे में जो उन्हें जन्नत में अब हासिल हो चुकी है। और ये वही वक्त होगा जब अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वही करेगा कि मैंने अपने कुछ ऐसे बंदे निकाले हैं जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं है, तो ए ईसा तुम इन लोगों को पूरी हिफाजत के साथ तूर पहाड़ की ओर ले जाओ। और तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला याजूज और माजूज को भेजेगा जो हर ऊंचाई से उतरते हुए आएंगे, और उनका पहला लश्कर बहरे तबरिया के पास से गुजरेगा और उसका सारा पानी पी जाएगा, यहाँ तक कि जब उनका आखिरी लश्कर गुजरेगा तो देखकर कहेगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। और दूसरी तरफ ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का घेराव कर लिया जाएगा, यहाँ तक कि उनके लिए गाय का सर 100 दीनार से भी कहीं ज्यादा कीमती हो जाएगा। 100 दीनार का मतलब आज के जमाने में करीब $1,00,000 के करीब है, तो आप सोच ही सकते हैं। साथ ही साथ एक और हदीस है, सही मुस्लिम की 2937 हदीस, जिसके अंदर लिखा है कि याजूज माजूज चलते रहेंगे जब तक कि वो अल-खमर पहाड़ के पास नहीं आ जाते, जो कि बैतुल मक़दिस के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। साथ ही एक और हदीस है, सुनन इब्न माजा की 4080 हदीस, जिसके अंदर रसूलुल्लाह कहते हैं, और याजूज माजूज निकलेंगे और सारा पानी पी जाएंगे और जमीन के लोग अपने आप को किलों में बंद कर लेंगे, और याजूज और माजूज बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचेंगे जहाँ पे हजरत ईसा और उनके साथी भी होंगे, और वहाँ पे वो लोग अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे और वो तीर खून के साथ रंगे हुए वापस आएंगे, और वो लोग कहेंगे कि हम लोगों ने जमीन और आसमान दोनों लोगों को मार डाला। और तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे, और तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला याजूज माजूज के गर्दनों के पीछे एक कीड़ा भेज देगा, और सुबह के वक्त वो लोग ऐसे एक झटके में मरेंगे जैसे सिर्फ एक ही इंसान की मौत हो, मतलब एक के बाद एक नहीं बल्कि एक सेकंड में ही सब लोग एक साथ एक झटके में मरेंगे। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी जमीन पे नीचे वापस आएंगे, लेकिन उन सबको कोई भी ऐसी जगह खाली नहीं दिखेगी जहाँ पे याजूज माजूज के सड़े हुए जिस्म की बदबू ना आ रही हो, और पूरी जमीन उनके मरे हुए जिस्मों से भरी पड़ी होगी। और तब ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी दोबारा अल्लाह से दुआ करेंगे, और तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे परिंदे भेजेगा जिनके गर्दने 2 कोहानी ऊँटों के गर्दनों की तरह होंगे, और वो उनके जिस्मों को उठाकर जहाँ अल्लाह चाहेगा वहाँ पे ले जाकर फेंक देंगे। और फिर अल्लाह एक ऐसी बारिश बरसाएगा जिसे कोई मिट्टी का घर या फिर ऊँट के बालों का घर सहन नहीं कर पाएगा, और पूरी जमीन ऐसे साफ हो जाएगी जैसे कोई शीशा हो। और फिर जमीन को हुक्म दिया जाएगा कि अपने फलों को और अपने नेमतों को उगाओ, और फिर जमीन ऐसे फल उगाएगी कि एक अनार इतना बड़ा होगा कि लोगों के एक झुंड के लिए सिर्फ वो एक ही अनार काफी हो जाएगा, और उसके छिलके के अंदर वो ठहर भी सकते होंगे। और एक गाय इतना दूध देने लगेगी कि वो एक पूरे मजलिस के लिए काफी हो जाएगा, और एक ऊँट इतना दूध देने लगेगी कि वो एक पूरे कबीले के लिए काफी हो जाएगा, और एक भेड़ इतना
दूध देने लगेगी कि वो एक पूरे घराने के लिए काफी हो जाएगा। और अंगूर का एक गुच्छा इतना बड़ा होगा कि वो एक बड़े झुंड के लोगों के लिए काफी हो जाएगा। और भेड़ों और ऊँटों पे कोई ज़कात नहीं लगाया जाएगा। जलन और हसद लोगों के दिलों से गायब हो जाएगा और हर जहरीले जानवर का जहर निकाल लिया जाएगा। यहाँ तक कि एक बच्चा अपने हाथ में सांप को पकड़ेगा और वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक छोटी बच्ची शेर को डराकर भगा देगी और वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और एक भेड़िया भेड़ों के साथ रहेगा जैसे भेड़ों का कुत्ता उनकी रखवाली करता है। पूरी जमीन अमन से भर जाएगी जैसे एक बर्तन में पानी भरा होता है और सारे लोग एक हो जाएंगे और जमीन पर सिवाय अल्लाह के और किसी की इबादत ना होगी और जंगों का होना बंद हो जाएगा और कुरैश अब और ताकत में नहीं होगा और जमीन ऐसी हो जाएगी जैसे कि एक चांदी का बर्तन होता है और जमीन अपने फलों को उगाएगी जैसे कभी हजरत आदम के जमाने में उगाया करती थी। एक बैल की कीमत महंगी हो जाएगी और एक घोड़ा बस कुछ ही दिरहम में बिक जाया करेगा। इस पर सहाबियों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, घोड़ा इतना सस्ता क्यों हो जाएगा? और रसूलुल्लाह ने कहा क्योंकि वो दोबारा कभी जंग में इस्तेमाल नहीं होंगे। और फिर उन्होंने पूछा कि आखिर बैल इतना महंगा क्यों हो जाएगा? तो रसूलुल्लाह ने कहा क्योंकि जमीन बहुत उपजाऊ हो जाएगी और उसके लिए बैलों की जरूरत होगी। साथ ही जो जमीन के जानवर होंगे वो याजूज और माजूज के मरे हुए जिस्मों को खाकर मोटे ताजे हो जाएंगे। इसी के साथ एक और हदीस है सुनन इब्ने माजा की 4076 हदीस, जिसके अंदर रसूलुल्लाह कहते हैं कि मुसलमान याजूज और माजूज के लाए हुए तीर, कमान और ढालों से 7 साल तक आग जलाएंगे। और दो और हदीसें हैं सही बुखारी की 2476 हदीस और सुनन नबी दाऊद की 4324 हदीस। इनमें रसूलुल्लाह ने कहा कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक कि ईसा इब्ने मरियम नीचे जमीन पर नहीं उतरेंगे। जब वो उतरे और तुम उन्हें देखो तो पहचान लेना वो एक मीडियम हाइट के हैं और गोरे रंग के हैं और उन्होंने हल्के पीले 2 कपड़े पहने हुए होंगे और उनके सर से पानी के कतरात नीचे गिरेंगे लेकिन उनके बाल गीले नहीं होंगे। वो इस्लाम के लिए लोगों से लड़ेंगे और इस उम्मत में एक आदिल हुक्मरान होंगे। वो सलीब यानी क्रॉस को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे और जिजिया भी बंद कर देंगे। और अल्लाह ताला उनके जमाने में सभी मजहबों को खत्म कर देगा सिवाय इस्लाम के। और पैसा और दौलत इतना ज्यादा हो जाएगा कि ज़कात भी नहीं लिया जाएगा। ईसा इब्ने मरियम जमीन पर आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे और वो इस जमीन पर 40 साल जिंदा रहेंगे और उसके बाद उनका इंतकाल होगा और मुसलमान लोग उनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे। और ये वही वक्त होगा जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ठंडी हवा भेजेगा जो लोगों को बगलों के नीचे से पकड़ेगा और उन्हें मौत की नींद सुला देगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक मुस्लिम रूह को कब्ज कर लेगा और जमीन पर सिर्फ बदकार लोग ही जिंदा बचेंगे। पर आखिर ये ठंडी हवा क्या होगी और कहां से आएगी? एक और हदीस है सही मुस्लिम की 2940 हदीस, जिसके अंदर रसूलुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ठंडी हवा भेजेगा शाम की तरफ से और जिस शख्स के अंदर भी जर्रे बराबर भी ईमान या अच्छाई होगी उसे वो पकड़ लेगी और मौत की नींद सुला देगी, चाहे वो शख्स किसी पहाड़ की गहराई में भी क्यों न छुपा हो। और इसके बाद इतने शरारती और बदबख्त लोग जिंदा बचेंगे जो खुलेआम सड़कों पर ओपनली गधों की तरह जिना करेंगे और वो लोग चिड़ियों की तरह लापरवाह होंगे और जानवरों के से होंगे। ना ही वो लोग अच्छाई को समझेंगे और ना ही बुराई को रोकेंगे। और शैतान इनके सामने इंसानी शक्ल में आएगा और कहेगा क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? और वो कहेंगे कि तुम हमें क्या हुक्म देते हो? और वो कहेगा कि इन बुतों की इबादत करो जिन्हें मैं तुम्हें बताऊंगा। हालांकि उनके पास इतना पैसा, इतना रिस्क और इतने आराम की जिंदगी होगी कि उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं होगी और कयामत इन्हीं लोगों पे कायम होगी। और एक हदीस सुनन इब्ने माजा 4049 हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह ने कहा कि इस्लाम लोगों पर से ऐसे उतर जाएगा जैसे लोगों के ऊपर से कपड़े उतर जाया करते हैं। यहाँ तक कि लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि नमाज क्या है, ज़कात क्या है, रोजा क्या है और हज क्या है। अल्लाह की किताब एक ही रात में जमीन से उठा ली जाएगी और उसका एक भी आयत नीचे जमीन पर नहीं बचेगा। और जमीन पर कुछ बूढ़े बूढ़ियां होंगी जिनको सिर्फ ये पता होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब लोग उनसे पूछेंगे कि ये तुम क्या पढ़ रहे हो तो वो कहेंगे हमने अपने बाप दादाओं को ये पढ़ते सुना था तो हम भी ये पढ़ते हैं। और जब रावी के एक शागिर्द ने पूछा कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह उन्हें क्या फायदा देगा तो रावी ने 3 दफा कहा कि ये उन्हें जहन्नम की आग से बचाएगा। और फिर एक हदीस है सही मुस्लिम की 148 हदीस, जिसके अंदर रसूलुल्लाह कहते हैं कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक जमीन पर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा। यानी इन गुनहगार लोगों को जो आखिर में बचे होंगे इनको अल्लाह अल्लाह का लफ्ज भी नहीं पता होगा। और अब इसके बाद सूर फूक दिया जाएगा,
लेकिन आखिर ये सूर क्या है? जामे तिरमिजी की 2430 हदीस है जिसके अंदर एक शख्स ने रसूलुल्लाह से पूछा कि आखिर ये सूर क्या है, और रसूलुल्लाह ने कहा एक सींग है जिसके अंदर फूंक मारी जाती है, और जब सूर फूंक दी जाएगी तो जो भी उसे सुनेगा वो अपनी गर्दन झुकाकर उसे सुनने की कोशिश करेगा, और जो सबसे पहला शख्स होगा जिसने सूर की आवाज सुनी होगी वो होगा जो अपने ऊंट के पानी के हौज को ठीक कर रहा होगा, और जैसे ही वो सूर की आवाज सुनेगा वो बेहोश हो जाएगा। इसी के साथ एक और हदीस है सही बुखारी की 6506 हदीस जिसके अंदर रसूलुल्लाह कहते हैं कि क़यामत इतनी तेज कायम होगी कि दो लोगों ने कपड़ा खरीदने और बेचने के लिए कपड़े को फैलाया होगा और वो खरीद न सकेंगे, यहाँ तक कि वो उस कपड़े को लपेट भी नहीं पाएंगे और क़यामत कायम हो जाएगी। एक शख्स अपने ऊंट का दूध ले जाकर पीने ही वाला होगा लेकिन पीने से पहले क़यामत कायम हो जाएगी, और एक इंसान पानी भर रहा होगा अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए लेकिन वो पिला नहीं पाएगा इससे पहले कि क़यामत कायम हो जाएगी, और एक शख्स खाने का एक निवाला खाने वाला ही होगा लेकिन खाने से पहले क़यामत कायम हो जाएगी। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि सूर फूकने के बाद क्या होगा और आखिरत के दिन लोग कैसे जिंदा किए जाएंगे और हिसाबो किताब कितनी सख्ती के साथ किया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि जन्नत में ऐसे पेड़ हैं जिनकी टहनियाँ सोने की बनी हैं? क्या सच में हवा ने आदम को धोखा दिया था? आखिर हजरत मूसा ने तौरात की तख्तियाँ क्यों फेंकी थी? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।